اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو،
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। उर्दू ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल मिस्ल कहावत को कहते हैं। ज़रबुल मिस्ल वो जुमला है जिसे बात के दौरान मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। चराग तले अंधेरा एक कहावत है, ज़रबुल मिस्ल है। चराग तले अंधेरा कब कहते हैं? जब हम देखते हैं कि किसी अमीर आदमी से या किसी आलिम से अपनों से ज्यादा परायों को फायदा पहुंचता है, तो कहते हैं चराग तले अंधेरा। दो तीन बातें यहां समझ में आती हैं। एक तो यह है कि ज़रबुल अमसाल बहुत मौसर होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इंसानी तजुर्बात का निचोड़ होता है। और तीसरी बात यह है कि बड़ी मुख्तसर होती है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। लीजिए, अब वो वक्त आ चुका है कि आज हम आपसे उर्दू ग्रामर के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें कर लें। घबराइए नहीं, ये ग्रामर की कोई बोरिंग क्लास न होगी, बल्कि निहायत ही दिलचस्प अंदाज में उर्दू ग्रामर की चंद एक अहम बातें आपके गोशेगुजार की जाएंगी। हम बात शुरू करते हैं इस्म या नाउन से, तो चलें। अलीफ सीन मीम, इस्म। इस्म अंग्रेजी में नाउन को कहते हैं। मगर इससे पहले कि हम इस्म के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल करें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि आदमी का जिस्म पहले बनता है या ढांचा? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आदमी का जिस्म पहले बनता है या ढांचा? ढांचा, ढांचा फिर जिस्म। जिस्म बाद में। मेरा दूसरा सवाल है, क्या ज़बान के साथ भी यही मामला है? क्या ज़बान का भी पहले जिस्म बनता है फिर ढांचा बनता है? पहले ढांचा और फिर जिस्म। पहले ढांचा फिर जिस्म। इस सवाल के जवाब में कोई तब्दीली करना चाहेगा? क्या ज़बान का जिस्म पहले बनता है या ढांचा? जिस्म पहले फिर ढांचा बनता है। जी हाँ शफी, आपने बिल्कुल सही कहा। ज़बान के मामले में पहले जिस्म बनता है, उसके बाद ढांचा। लेकिन आदमी के या किसी भी जानदार के मामले में पहले ढांचा फिर जिस्म। तो आप समझ गए होंगे कि ज़बान का ढांचा क्या है। ग्रामर। ज़बान का ढांचा है, बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रामर। तो हम आज की क्लास से शुरू करेंगे ग्रामर मुख्तसर सी। तो सबसे पहला हमारा सबक होगा इस्म या नाउन। आप सब जानते ही होंगे कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म नाम को कहते हैं। किसी जगह, किसी शख्स, किसी इदारे, किसी जमात या किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन अहमद एक आदमी का नाम है, कश्मीर एक जगह का नाम है, साहित्य अकादमी एक इदारे का नाम है। तो इसी तरीके से हर नाम को हम कहेंगे इस्म। अब आप गौर कीजिए कि नाम कभी एक ही नहीं होता, नाम तो कई होते हैं, दर्जनों उसकी किस्में हो सकती हैं।
अब उन तमाम किस्मों को हम दो बड़े बड़े उन्वानात के तहत तकसीम करेंगे। एक किस्म होगी इसमें ख़ास यानी कि प्रॉपर नाउन, और दूसरी किस्म होगी इसमें आम यानी कि कॉमन नाउन। तो ये तकसीम होगी हमारी कुछ इस तरह। अलीफ सीन मीम इस्म, नीचे जेर देंगे तो ये इसमें बनेगा, और खे अलीफ स्वाद इसमें खास। अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। और इसकी दूसरी किस्म होगी इसमें आम, और अंग्रेजी में हम इसे लिखेंगे कॉमन नाउन। इसमें खास और इसमें आम, इन दो बड़ी किस्मों के तहत नामों के तमाम किस्म आ जाते हैं। यूँ करते हैं, इसमें से हम सिर्फ एक किस्म को लेंगे आज की क्लास के लिए और उसके बारे में तफसील से जानेंगे। पहले इसमें खास। अभी मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, इसमें खास नाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है? इसमें खास, इसम तो नाम है, खास खास जो किसी का खास नाम हो वो इसमें खास हो सकता है। जैसे किसी का नाम अरशद है, एक खास नाम है किसी का। रवि है, रवि एक खास नाम हो सकता है। एंथोनी है, एंथोनी एक किसी का खास नाम हो सकता है। इसी तरीके से अमीरुद्दीन है, एक खास नाम। मुनीरा है, एक खास नाम। तो ये तमाम नाम खास हो सकते हैं। लेकिन खास नामों में भी यूँ होता है कि उनकी भी कई किस्में बन जाती हैं। खास नामों में भी उनकी भी कई किस्में बन जाती हैं। अब हम देखेंगे उनकी कुछ किस्में। इसमें खास की कुल 5 किस्में हैं, जिनमें से हम बारी बारी एक एक किस्म को देखेंगे। इसे हम तकसीम करेंगे कुछ इस तरह। एक, 2, 3, 4 और 5। इसमें खास की 5 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है, यह है ऐन, लाम और मीम। अलम, ऐन, लाम, मीम, अलम, ये इसमें खास की पहली किस्म है। अलम वो नाम है जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, या माँ बाप का रखा हुआ नाम अलम है, या पैदाइशी नाम को हम अलम कहते हैं। इस झैल में वो तमाम नाम आ सकते हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया है। जैसे शहला एक नाम है, नौशीन एक नाम है, शहनीर एक नाम है जो उनके माँ बाप ने उन्हें रखा है। तो अलम क्या है? अलम पैदाइशी नाम को कहते हैं। अब चलिए इसकी दूसरी किस्म की तरफ हम चलते हैं, और वो है उर्फ। उर्फ भी एक तरह का नाम है। ये किस तरह का नाम है? ये नाम वो है जिसे माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब लाड़ और प्यार की वजह से या हिकारत की वजह से, नफरत की वजह से बिगाड़ कर बुलाते हैं, उसे उर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर शबनम है, शब्बो। शमशाद है, शम्मो भी कहते हैं, शमा भी कहते हैं। तो ऐसे कई नाम आप लोग जानते ही होंगे जिसमें नामों को बिगाड़ कर बुलाया जाता है, मोहब्बत और नफरत दोनों तरीके से। लिहाजा अब आप लोगों की बारी है। आप लोग बताइए कुछ उर्फ जानते हो। अज्जू। अज्जू, जी हाँ, एक नाम है अज्जू, लेकिन इसमें खराबी यह है कि ज़रा आ का ज़बर निकाल कर नीचे ज़ेर रख देंगे तो ये इज्जू बन जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, है या नहीं? चलिए, अज्जू है। और कोई? संजू। संजू है, जी हाँ। संजय है, संजय से संजू, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये उर्फ है संजू। और कोई?
सोनू, सोनू, जी हाँ, ये बहुत आम है। सोनू जो नाम है हर घर में बिला मजहब व मिल्लत फ़र्क के ये बुलाते हैं। मुसलमान भी बुलाते हैं, हिंदू भी बुलाते हैं और क्रिश्चियन ईसाई भी बुलाते हैं सोनू नाम। और कोई नाम? सम्मो, सम्मो, जी हाँ, सम्मो भी एक उर्फ हो सकता है। आपकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, सब इधर के लोग बोल रहे हैं। शब्बो, जब्बू, जब्बू, जब्बू किसका हो सकता है? जबीन का, जी हाँ, सही कहा आपने, जबीन को जब्बो कर लिया। और कोई? निशु, निशु, हाँ, निशु भी हो सकता है। बहरकफ ये वो नाम हैं। कुछ और अच्छे नाम हैं जो आप लोग बोल नहीं पाए, मुझे याद आ रहे हैं, जैसे चुन्नू है, मुन्नू है, पप्पू है, जी हाँ, चुन्नू, मुन्नू, पप्पू, ये तमाम नाम क्या हैं? ये कहलाते हैं उर्फ। तो ये इसमें ख़ास की दूसरी किस्म है। अब आइए हम देखें इसमें ख़ास की 3 और किस्में, लक़ब, खिताब और तखल्लुस। पहले लक़ब, हमने अलम, उर्फ। अब आइए इसकी तीसरी किस्म देखें, लक़ब, लाम, क़ाफ, बे। लक़ब, लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब कहते हैं किसी शख्स की किसी ख़ास सिफत, कोई ख़ास अच्छाई की वजह से उसका नाम पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर हातिम ताई की सखावत बहुत मशहूर है। वो बहुत सखावत करता था, उसकी इस ख़ास सिफत की वजह से उसका लक़ब पड़ गया था सक़ी। तो हम जब भी हातिम ताई का नाम लेते हैं तो उसके लक़ब के साथ उसे याद करते हैं, सक़ी हातिम ताई। इसी तरीके से मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की मर्दानगी या मर्दाना वजाहत के वजह से लोग उन्हें मिर्ज़ा नौशाह के लक़ब से याद करते थे। अक्सर बादशाह कोई ना कोई लक़ब इख्तियार करते थे। जैसे अकबर से शहंशाह अकबर का लक़ब था ज़िल्ले इलाही। तो लक़ब किसी की ख़ास सिफत या उसकी किसी अच्छाई की वजह से मशहूर हो जाने वाले नाम को कहते हैं। तो यह है लक़ब। अब आइए हम इसमें ख़ास की एक और किस्म देखें और वो है खिताब। खिताब ये भी एक तरह का नाम है, मगर ये नाम अलम की तरह नहीं है, उर्फ की तरह नहीं है, लक़ब की तरह भी नहीं है। अलम माँ बाप का दिया हुआ नाम, उर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों का दिया हुआ नाम, लक़ब किसी सिफत की वजह से आम होने वाला नाम, जबकि खिताब सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला नाम है। खिताब क्या है? गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से दिया जाने वाला नाम है खिताब। आज के ज़माने में जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न। भारत रत्न, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत रत्न भी हमारा सबसे बड़ा खिताब है हमारी हुकूमत का। कुछ याद है आप लोगों को कि अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके पास एक खिताब हुआ करता था। कुछ उर्दू वालों को भी वो खिताब मिले थे, जैसे सर सैयद अहमद खां। हाँ, सही कहा आपने, जी हाँ, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, वहाँ भी सर है। ये भी एक तरह का खिताब है, ये भी एक तरह का नाम है जो हुकूमत, सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से अता होता है उनकी खिदमत की वजह से। तो ये रहे 4 किस्में, अलम, उर्फ, लक़ब और खिताब। ये ख़ास है, ख़ास नाम है। अब आइए हम चलते हैं इस सिलसिले के आखिरी नाम की तरफ, और वो आखिरी नाम है ये है तखल्लुस। अब ये इतना मशहूर है, मैं समझता हूँ कि आप में से कोई भी
बता सकता है कि तखल्लुस क्या है? क्यों ना इस बच्ची से पूछूं। हाँ बताइए। वो छोटा सा नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वो छोटा सा नाम जो शायर अपनी गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, छोटा सा नाम। जैसे मिसाल के तौर पर, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो तखल्लुस एक शायर का छोटा सा नाम है जो अपनी गज़ल में इस्तेमाल करता है। और याद रखिए कि जब तखल्लुस इस्तेमाल होता है तो उस पर एक छोटी सी अलामत इस तरह बना दी जाती है। ये इसमें अलामत इस तरह की बनती है। ये मुराद ये है कि ये तखल्लुस है। सर, हाँ बताइए। तखल्लुस की ज़रूरत क्या है? हाँ तो शहला, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इस वक्त इस सवाल की ज़रूरत थी। हमें सोचना चाहिए कि वाकई तखल्लुस की ज़रूरत क्या है। तो जवाब इसका ये है कि हमारे नाम इतने लंबे लंबे होते हैं कि वो किसी मिसरे में खप ही नहीं सकते। अब आप गौर कीजिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खां किस मिसरे में बैठेगा? तो उन्होंने अपना तखल्लुस रखा, पहले असद बाद में गालिब। मोहम्मद इब्राहिम तखल्लुस रखा उन्होंने, ज़ौक़। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन छोटा सा तखल्लुस रखा, हाली वगैरह। मैं आपको बताऊं कि अक्सर हमारे तखल्लुस शुअरा के छोटे छोटे भी हैं, दो दो हरफी। जैसे दिल कितना छोटा है जी, बहुत छोटा सा तखल्लुस है। तो तखल्लुस का मकसद कि शायरी में उसका इस्तेमाल हो, तो उसी एतबार से तखल्लुस बहुत अच्छा भी रखते हैं और छोटा भी रखते हैं। तो यहाँ इसमें ख़ास की पांचों किस्में ख़त्म होती हैं। फिर एक बार याद दिला दूँ कि इसमें ख़ास की 5 किस्में हैं: अलम, उर्फ, लक़ब, खिताब और तखल्लुस। तो नाज़रीन, आज की क्लास में हमने इस्म और उसकी 2 बड़ी किस्में में से एक किस्म, इसमें ख़ास और उसकी 5 किस्में हमने देखी। अगली क्लास में हम इसमें आम और उसकी मुख्तलिफ़ किस्में देखेंगे। दोस्तों, आज आपने ग्रामर का पहला सबक पढ़ा है, उसे दोबारा पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को यहीं पर इजाज़त। खुदा हाफिज़।